Hello children, welcome to my channel. We are on the third video of class 11 chapter 1 economics subject, and the chapter 1 is economics and economy. In the last two videos I gave you an introduction of economics and economy. I explained you what economics is all about, the official definition of economics, who's the father of economics, who was the first Indian economist. Okay, and then I explained you the relationship between choice and scarcity. If you have not seen my video, the link is flashing over the I button. You can click over the I button and go to that link, see the video and then come back here. Okay, now moving on to the next topic, that is micro and macro economics. एक नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार पढ़ोगे आप लोग. तो हम सबसे पहले वर्ड समझते हैं. इकोनॉमिक्स तो हमको पता है कि इट इज अ साइंस विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर. अब इकोनॉमिक्स के आगे ये जो दो वर्ड लग गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो और मैक्रो. वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड देम. माइक्रो हम वर्ड कहाँ सुनते हैं? हम नॉर्मली सुनते हैं कि चिप आ गई है आजकल. सिम जो है स्मॉल चिप्स में आ गई है, विच इज कॉल्ड एज माइक्रो चिप्स, राइट? Understood. So micro means which is very very small and macro means which is very very big. Understood? तो अब तुम इसको अटैच करो इकोनॉमिक्स के साथ. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स it is a science which deals with the human behavior at a very small level. What is the small level? That is at an individual level. समझ में आया? यानी जो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल से डील करती है और उसकी प्रॉब्लम से डील करती है, और हाउ डज ही एलोकेट द स्कार्स मींस, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो मींस बिग, और इंडिविजुअल का सबसे बिगेस्ट वर्जन क्या हो सकता है? दैट इज कंट्री एज अ होल, राइट? So macroeconomics is that science which deals with the problem of allocation of resources of a country. How does country balances its scarcity and its choice? Understood? Microeconomics में हम सब कुछ एक particular individual के लिए पढ़ेंगे, एक particular firm, एक particular industry. We will explain and we learn about it. Macro में we will completely talk about the country. How does country deals with all these problems? अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो country is definitely going through this problem of scarcity and choice. Okay, so first of all, we'll first learn the difference between micro and macro. Micro and macro पढ़ने से पहले, I'll first explain you all the contents of micro and I'll explain you all the contents of macro, and then we will compare. Okay, so let us see first. Micro. Micro is an economics which deals with the economic problem on the level of individual. यानी यहाँ पे micro economics किससे डील करती है? It deals with the economic problem. Economic problem दो ही तरीके की हमने अभी तक पढ़ी है, that is scarcity और दूसरी होती है choice. हाँ या ना? हमने दो ही तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी है, that is scarcity और choice. And both of them are dealing at the level of an individual. एक particular individual के लिए हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की. अब इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग हो सकता है, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री हो सकती है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो सकती है. सो दैट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल टेक्निक्स. ओके, अंडरस्टूड? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. नाउ सेकंड, it deals with determination of output and price of an industry. Industry यानी basically यहाँ पे आप individual लिख लो कि यहाँ पे micro economics deals with how does an output work. Output यानी production कैसे काम कर रहा है, और price कैसे काम करती है for a specific individual or for a specific industry. Understood? Micro economics बताता है कि हम कैसे production करते हैं, एक individual industry कैसे प्लान करती है कि उसका प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए जिससे उसको प्रॉफिट नहीं हो और उसको नुकसान भी नहीं हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर उसका गुड छोड़ के दूसरे गुड्स को यूज कर रहा है. अंडरस्टूड? सो ऑल दिस वी टॉक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ इट अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट. यानी मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स और वो कंटेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं, वो सब यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, यानी उनका इफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स पे नहीं पड़ता है. मैक्रो वेरिएबल्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स ओनली विद इंडिविजुअल. तो जो कंट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर डेफिनेशंस होती हैं या फिर फैक्टर्स होते हैं, दैट डू नॉट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल पर्सन. अंडरस्टूड? Any doubt? Okay, now the last point, market forces. What are market forces? The forces which actually regulates the market. Market कैसे regulate होता है? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. सप्लाई और डिमांड से मार्केट चलता है.
ठीक है, जैसे कि हम माने सप्लाई और डिमांड से अगर हम देखें लेटेस्ट क्या आ गया, मैगी देख लेते हैं। मैगी वापस रिवाइव हुई, मैगी वाज क्लोज्ड इन द मार्केट, ओके, बट द डिमांड ऑफ मैगी वाज constantly urging. People were addicted to Maggi, and when Maggi was banned by the government for a while, people were continuously urging, and in fact they were purchasing it for a higher rate. Yes or no? और उसी time what happened? Yippee Noodles, we all know, is another brand, took over that benefit, and he started producing big family packs of various variety of ranges. In fact, Ching Chinese Noodles was also another brand who came up and who came forward in producing various varieties, और उनको लगा कि वो मैगी का मार्केट खींच लेंगे. But slowly and gradually when Maggi got an approval from the government to sell its product, again what happened? जैसे ही मैगी मार्केट में आया, its डिमांड इंक्रीज. जब डिमांड इंक्रीज हुई तो धीरे धीरे मैगी की सप्लाई इंक्रीज हो गई. सप्लाई इंक्रीज हुई तो मैगी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. अंडरस्टूड? सो मार्केट फोर्सेस actually influence the economic problems. यानी मार्केट फोर्सेस ही रेगुलेट करता है एक इंडस्ट्री की डिमांड को, एक इंडस्ट्री की सप्लाई को, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, यानी प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस को मार्केट फोर्सेस ही एक्सप्लोर करते हैं. इनफैक्ट किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस भी मार्केट फोर्सेस के कारण ही सेटअप होता है. अगर कोई प्रोडक्ट बहुत डिमांड में, पब्लिक ले रही है, मैगी ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा डिमांड में, कितने भी प्राइस का हो, कहीं ना कहीं बच्चा विल डेफिनेटली आस्क हिज मदर for a Maggi on a weekend or during a lockdown. They will urge. Understood? So the price is determined according to the market forces. Understood? That is the concept of microeconomics. बस ये ध्यान रखो कि microeconomics deals with individual, उसकी individual problems, यानी एक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, एक इंडिविजुअल की, तो इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे वो प्रोडक्शन करेगा, कैसे वो प्राइस को डिटरमाइन करेगा, और कैसे डिमांड एंड सप्लाई के कारण उसकी प्राइस जो है इन्फ्लुएंस होगी. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो वेरिएबल्स डू नॉट वर्क एट ऑल. वी डू नॉट इन्फ्लुएंस मैक्रो वेरिएबल्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम डिमांड या सप्लाई की बात करते हैं तो. अंडरस्टूड? एनी डाउट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगेन यहां पे था इंडिविजुअल लेवल. हियर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, है ना. कंट्री की तो इकोनॉमी होगी, तो इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल जब हम बात करेंगे तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. इफ यू रिमेंबर क्लास 10th में हमने पढ़ा था एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, है ना. अगर हम इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, लेकिन जैसे ही मैं एवरेज इनकम बोलती हूँ तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की. वी ऑल नो ना, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, which tells you that how many people are getting a rough amount of this income in the country. So the same way macroeconomics भी deal करता है averages पे. It determines the aggregate output. यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ individual output था और individual price थी. यहाँ पे aggregate है, सब कुछ average पे चलेगा क्योंकि economy also runs on averages. We just make average assumptions and then the economy has been decided. So aggregate output और aggregate price पे चलता है economy. समझ में आया? So macro economics भी उसी पे डील करता है. अब माइक्रो के अंदर मैक्रो वेरिएबल्स बिल्कुल कांस्टेंट है. कांस्टेंट यानी उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है. सेम ऐसा ही मैक्रो के अंदर माइक्रो वेरिएबल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि दे कॉन्टिन्यूअसली असेस द इकोनॉमी एज अ होल. वो इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचते हैं और ये पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, एंड दे थिंक ओनली अबाउट देमसेल्व्स, नॉट अबाउट द होल इकोनॉमी. समझ में आ रहा है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्ट करती हैं और बहुत ज्यादा रूल करती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को. माइक्रो के अंदर मार्केट फोर्सेस थे जो एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर चलते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, लेकिन मैक्रो के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अगर कुछ ऐसा है which actually influences the economy, then definitely that proves to be a better point. जैसे कि अगर हम देखें MG नरेगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, राइट, that was basic, that is also called as महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंदर वो कहते हैं कि 100 दिन आपको कंफर्म एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट विल पे यू 100 days of money. So that increases the
रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन द कंट्री, हाँ या ना, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो कंट्री की इकोनॉमी में लोग जो इनकम कंट्रीब्यूट कर रहे थे, द एवरेज इनकम विल आल्सो इंक्रीज, दैट विल ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। समझ में आया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरा गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, पॉवर्टी के इश्यूज, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज जो भी है वो सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है। जब हम हमारी कंट्री की इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो वी आर कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स टुडे। whenever we are talking about hearing the word about economy in the newspaper, then we are talking about the country as a whole. Many people are behind it to make India a stabilized economy where they have to fight with the problem of unemployment, poverty, education, and that is why government keep on changing its policies to improve the level of economy in the country. Understood? अब आया समझ में concept of macro and micro. Micro मतलब एक अकेला और macro मतलब पूरी country as a whole. अंडरस्टूड? आगे बात समझ में। माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल डिमांड, एक पेन चाहिए एक पेन ले लो। मैक्रो के अंदर पूरी कंट्री को कितना रिसोर्स चाहिए उसके बारे में डिस्कशन होगा। अंडरस्टूड? माइक्रो के अंदर मैक्रो वेरिएबल्स काम ही नहीं करते कि कंट्री के पास पानी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है ना, दैट इज मोर देन इनफ। अंडरस्टूड? सो माइक्रो के अंदर मैक्रो वाले वेरिएबल्स बिल्कुल कांस्टेंट, उनका कोई इफेक्ट नहीं है, और मैक्रो के अंदर माइक्रो वाले वेरिएबल्स का बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है। वी हैव टू लुक ओवर एवरीवन, ऑल द पीपल इन द कंट्री, वेदर दे आर रिच, पुअर, मेल, फीमेल, and what we can say of whichever caste, whichever religion, but we have to look as an economy as a whole. ठीक है? माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई इफेक्ट करती है। एक कंट्री की डिमांड और सप्लाई पे माइक्रो इकोनॉमिक्स चलती है, यहाँ पे चलती है गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है बिकॉज दिस इज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। Understood? With this concept, we wrap up this topic of micro and macro economics. इसका difference between बहुत important है। 5 mark के questions में definitely ऐसा question आता है कि write down the difference between micro and macro economics. Apart from that, कई बार आता है कि analyze how do you feel that macroeconomics is beneficial for a country or microeconomics is beneficial for an individual. ऐसे questions आ जाते हैं 3 marks में, but 5 marks में ऐसा question definitely आता ही आता है। Okay, I hope you have understood the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.